everyone, welcome back to We Learn English Easily. How are you all? I hope you all are sailing in the same boat because we met yesterday too. So as you all know that we have been doing the chapters of class 3 of the book English Fail. And today we're gonna start the 4 dragons. Okay, so let's start the video without wasting time. But before starting the chapter, we should know the meaning of the title, the 4 dragons. Okay, 4 it means we know 4. What is the meaning of dragons? Okay, dragon it means a flying giant snake. एक बहुत बड़ा उड़ता हुआ सांप या हम कहें अजगर. Okay, so let's start. But before starting the chapter, we have a warm-up activity, and what's that? Look at the pictures and answer these questions. Okay, a picture has been shown to us and this is a picture of a dragon and some questions have been asked. We'll have to answer them. Let's do. Okay, do you know what this is? क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? Yes, we really know this is a dragon. Okay, what does it look like? ये कैसा दिखता है? Okay, these questions you'll have to tell me in the comment section. Okay, इन सब के answers आपको comment section में बताने हैं. What does it look like? ये किसके जैसा दिखता है? Where do you think it lives? आपको क्या लगता है कि ये कहाँ रहता है? What does it sound like? ये किसकी तरह आवाज़ करता है या इसकी आवाज़ किसकी जैसी है? Have you ever read a story about it? क्या आपने कभी कोई कहानी इसके बारे में पढ़ी है? What do you think it is? आपको क्या लगता है ये क्या खाता है? How would you feel if you saw one? आप कैसा महसूस करेंगे अगर आप एक ड्रैगन को देखते हैं? Okay. आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए ड्रैगन को समझना, आई एम गोना शो यू अ वीडियो एंड सम इमेजेस जिससे कि आप समझ पाएं कि ड्रैगन कहाँ रहता है, क्या खाता है, किसकी तरह आवाज़ करता है और कैसे रिएक्ट करता है. ओके, नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. ओके, yes, very interesting chapter with a very good message. Let's start. Read this interesting story about 4 dragons. Okay, this is an interesting story about 4 dragons. In this story, 4 dragons gonna help the people of the earth. Okay, and they'll help too, but they'll be punished. उनको punish किया जाएगा क्योंकि वो हेल्प करते हैं लोगों के. ओके, और ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम किसी की हेल्प करें और हमें पनिशमेंट मिले, है ना? यही देखना स्टोरी में इंटरेस्टिंग रहेगा. तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है. अबाउट द ईस्टर्न सी, इट मीन्स देयर आर सीज. सो हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न सी की. ईस्टर्न सी इट मीन्स पूर्वी समुद्र की हम बात कर रहे हैं. सो अबाउट द ईस्टर्न सी 4 dragons are playing hide and seek. Okay, 4 dragons are there and they are playing hide and seek. Suddenly one of them notices something on earth, and when the 4 dragons were playing and one of them, a dragon noticed something on the earth. Okay, now let me make you understand this in Hindi. About the eastern sea, पूर्वी समुद्र के ऊपर 4 dragons are playing hide and seek. 4 dragons जो है वो hide and seek खेल रही हैं या हम कहें छुपम छुपाई खेल रही हैं. Suddenly one of them notices something on earth. अचानक उनमें से एक ड्रैगन अर्थ के ऊपर कुछ नोटिस करता है. कम हियर क्विकली, जल्दी यहाँ आओ. द अदर 3 dragons stopped playing. So when the other dragon said like come here, there is something on the earth. So the remained 3 dragons, they stopped playing and they came to look down on the earth. What's up? Okay, क्या होता है? जैसे ही उनमें से एक ड्रैगन कहता है कि देखो अर्थ पे क्या हो रहा है, तो बाकी के जो 3 ड्रैगन्स हैं वो खेलना छोड़कर अर्थ के पास आते हैं. दे लुक डाउन द अर्थ टुवर्ड्स द अर्थ. वो धरती की तरफ देखते हैं. व्हाट्स अप? क्या हुआ? अर्थ हैज ड्राइड अप. धरती सूख गई है. पीपल आर प्रेइंग फॉर रेन. लोग बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. ओह गॉड, प्लीज सेंड सम रेन सो दैट आवर चिल्ड्रन हैव राइस टू ईट. हे भगवान, थोड़ी सी बारिश कर दीजिए ताकि फसल हो जाए और हमारे बच्चों को खाने के लिए अनाज मिल जाए या चावल मिल जाए. द पीपल आर हंग्री, दे डाई इफ देयर इज नो रेन. लोग भूखे हैं, बारिश नहीं होगी तो लोग मर जाएंगे. आई थिंक वी शुड डू समथिंग. मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए. वी शुड गो टू द हेवनली पैलेस.
हमें स्वर्ग के महल में जाना चाहिए एंड रिक्वेस्ट टू द जेड एम्परर सेंड रेन एंड हेल्प द पीपल, कि हमें जेड सम्राट के पास जाना चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप प्लीज़ बारिश करवा दीजिए और लोगों की मदद कीजिए। लेट्स गो, चलो चलते हैं। ड्रैगन्स मीट द जेड एम्परर, जो ड्रैगन्स थे वो जेड एम्परर से मिलते हैं। ही इज़ नॉट प्लीज टू सी दैम, जेड एम्परर जो है वो उन ड्रैगन्स को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। ही इज़ लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑफ द फेरीज, वो अभी भी परियों के गाने सुन रहे हैं। ऐसा दिखाया जाता है ना उनको कि जैसे स्वर्ग लोक में इंद्र भगवान ऊपर होते हैं, बाकी फेरीज डांस कर रही होती हैं या गाने गा रही होती हैं। ओके, वी ब्रिंग बैड न्यूज फ्रॉम अर्थ, हम धरती से बुरी खबर लाए हैं। द क्रॉप्स देयर आर वीदरिंग एंड डाइंग, वहाँ की फसल जो है वो सूखी गिरकर मुरझा रही है। वी रिक्वेस्ट यू टू सेंड रेन क्विकली, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके बारिश कर दीजिए। आई हैव हर्ड यू, मैंने आपको सुन लिया है। नाउ गो बैक, अब आप जाइए। आई सेंड सम रेन बाय टुमारो, मैं कल तक बारिश करवाता हूँ। थैंक यू योर मैजेस्टी, महामहिम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 days have passed, 10 दिन बीत गए हैं। द अर्थ इज स्टिल ड्राई, पृथ्वी तो अभी भी सूखी है। एंड द पीपल आर प्रेइंग फॉर रेन, और लोग अभी भी बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सम आर ईटिंग ड्राई ग्रास एंड रूट्स, पर उनमें से कुछ तो सूखी घास और जड़ भी खा रहे हैं। द जेड एम्परर डज नॉट रियली केयर, जेड सम्राट को इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इट इज़ अप टू अस टू हेल्प द पीपल और देयर डाई, अब ये हमारे ऊपर है कि हम लोगों की मदद करें, वरना तो ये मर जाएंगे। सडनली वन ऑफ द ड्रैगन्स लुक्स आउट टू सी, अचानक उनमें से एक ड्रैगन समुद्र की तरफ देखता है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। देयर इज सो मच वाटर इन द सी, समुद्र में बहुत सारा पानी है। लेट्स स्कूप इट अप एंड स्प्रे इट टूवर्ड्स द स्काई, चलो इसे मुंह में भरकर आसमान की तरफ इसे स्प्रे करते हैं। द वाटर विल फॉल लाइक रेन ड्रॉप्स एंड सेव द पीपल, ये जो पानी है ये बारिश की बूंदों की तरह गिरेगा और लोगों की जान बच जाएगी। गुड आइडिया, लेट्स गो, बहुत अच्छा विचार है, चलो यही करते हैं। द ड्रैगन्स डिसाइड टू ब्रिंग रेन टू द पीपल ऑन अर्थ, ड्रैगन्स ने डिसाइड किया कि वो लोगों के लिए पृथ्वी पर बारिश करेंगे। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। लोग इस तरीके से कहकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। द लैंड इज ग्रीन अगेन, वापस से पृथ्वी हरी हो गई है। द सी गॉड रेजेज हिज हेड एंग्री, जो समुद्र का देवता है वो अपना सर उठाता है बहुत ही गुस्से से। He then goes to speak the Jade Emperor and tell him what the dragons have done. उसके बाद वो जेड सम्राट के पास जाता है और उसे बताता है कि उन ड्रैगन्स ने क्या किया है। The disobedient dragons took water from my sea. उन मतलब डिसोबीडियंट क्या होता है, जो कहना नहीं मानते हैं। मतलब जब आपने कह दिया था कि आप बारिश कर देंगे, सो दे शुड वेट, उनको इंतजार करना चाहिए था। दे शुड हैव पेशेंस, उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपका कहना नहीं माना और आकर के मुझसे पानी वो लेकर गए। दे हैव सेंट रेन टू द पीपल, और उन्होंने लोगों के लिए बारिश भी की। हाउ डेयर दे ब्रिंग रेन टू अर्थ विदाउट माई परमिशन, मेरी आज्ञा के बिना उनको पृथ्वी पर बारिश करने की क्या जरूरत थी, उनकी हिम्मत कैसे हुई। आई टीच देम अ लेसन, अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। द 4 ड्रैगन्स आर ब्रॉट टू द पैलेस इन चेन्स, चारों ही ड्रैगन्स को बेड़ियों में डालकर महल में लाया जाता है। दे आर स्केर्ड, वो डरे हुए हैं। दीज ड्रैगन्स आर वेरी काइंड, ये जो ड्रैगन्स हैं ये बहुत दयालु हैं। इम्प्रिजन दैम अंडर ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वतों के नीचे इनको बंदी बना लिया जाए। देयर पनिशमेंट विल बी टू ले ट्रैप्ड ऑन अर्थ फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, इन लोगों की यही सजा है कि पृथ्वी पर हमेशा जाल में रहेंगे अपनी पूरे जीवन भर। ऑल्दो दे आर पनिश्ड, हालांकि उनको सजा मिली थी। द ड्रैगन्स आर हैप्पी, लेकिन ड्रैगन्स अभी भी खुश हैं। दे वॉन्ट टू बी यूजफुल टू द पीपल ऑन अर्थ, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोगों के काम आए, किसी भी तरीके से काम आए चाहें। सो द 4 ड्रैगन्स टर्न देमसेल्व्स इनटू रिवर्स so that they could keep the land green and fertile and continue to help the people on the earth for the rest of their lives. इसीलिए ड्रैगन्स ने क्या किया, खुद को क्या किया, उन्होंने रिवर्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया, खुद को रिवर में बदल लिया, ताकि ज़मीन जो है वो हरी भरी रहे
उपजाऊ बनी रहे और वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की जीवन भर मदद कर पाए. Okay, so this is the chapter. I hope आपको समझ में आया होगा. Now we're gonna do some hard words and word meanings. Students, so these are the hard words. Let's understand them. What is first? Eastern. It means east side. Sea आप कह सकते हैं. Eastern का मतलब east side. लेकिन हमें चैप्टर में क्या दिया है? Eastern Sea. It means the sea which is in east. Okay. What is next? Dragons. As I have told you. Giant flying snake. What is next? Suddenly. अचानक. Praying. It means प्रार्थना करना. Heavenly. स्वर्ग. Emperor. सम्राट or you can say king. Pleased. खुश. Raindrops. बारिश की बूंदे. Angrily. गुस्से से. Disobedient. अनाज्ञाकारी. Permission. सहमति. Punished. सजा देना. Imprison. जेल में डाल देना. And fertile it means उपजाऊ. Okay. Now we will do the word meanings. Okay students, these are the word meanings. Only 3 word meanings are there. Let's understand them. Withering. It means drying up. सूखना या सूखा पड़ जाना. Scoop. It means pick up and move. उठाना और ले जाना. Next is spray. To scatter something with great force. बहुत ज़्यादा ताकत लगा के कोई चीज़ बिखेरना या फैलाना हम कह सकते हैं. Okay students, so that's it for today. We have completed the explanation of the chapter. We have done the hard words and word meanings too. In the next video, we'll talk about the book exercise and question and answer. So don't miss out the next video. And if you don't want to miss the next video, so do subscribe the channel. Under this, there is a red subscribe button. Just press that and then press the bell icon too, so that you can get the newest, so that you can get the notifications of the video. It means whenever I will upload the video, you will get a notification and you can click on that and you can get the video. Okay, so stay tuned with us. Do subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you. Thanks for watching.